This conference will now be recorded. Hello. Yes, so good morning, everyone. I'm audible. Yes, yes, Yes. you're audible. Okay. Yep. Thank you. So yes, good morning, everyone. So first of all, I'll give you my little introduction. This is Pushpendra Chauhan, and I have the experience of in this field, medical coding and billing, from almost 7 years. And during these 7 years, I worked with the various MNCs in the various specialties. And today, I am giving this webinar for the medical coding and the billing. Okay, so yes, first of all, welcome to all of you and thank you to attending this webinar. So we will start. And one more thing, I will give this webinar in the both language, okay, Hindi and English, because I think the language is not a barrier for understanding. So I'm using somewhere Hindi, somewhere English as per the understanding. Okay, so yeah, here we go. So first of all, in this webinar, we will cover this topics. First, the US healthcare. So first of all, I want to tell you everyone, medical coding and billing is totally based on the US healthcare. Not like in India. जैसे इंडिया में होता है कि we have the different things of the healthcare prospectus to reimbursement. I mean, they provide the payment to the doctor, to the labs, and also the medicals. So US is totally different in this manner. Okay, so again, I'm telling you what is the medical coding, because this is the US billing. US healthcare is very large sector, and medical coding is the small part of that. Okay, then the third main question everyone is here, why should one consider a career in the medical coding and billing? This is the major question for everyone who is here right now, कि हम इस career इसको as a career क्यों choose कर सकते हैं, right? Another thing, the second one, the various jobs in India. Obviously, if you are doing anything, any subject, any course, whatever you will do, always you have them in mind, the jobs, the vacancies, okay, the career. So various jobs in India as well as Gujarat, because I am belonging from the Gujarat right now. I'm working in the Ahmedabad, so for that I tell the Gujarat, but it's not an issue for the state or anything. Definitely other states, या आप जहाँ से belong करते हैं, definitely I'll let you know कि वहाँ पे कौन सी jobs हैं. Then benefits and perks, obviously everyone is work for the benefits. If you are choose as a career of the medical coding or billing, definitely you must know what is the benefits and the perks in this field. Okay, and the last one, because no one is want to work for the short term, right? People always want to see their self in the long term goal. So the most important thing is future growth. If you are right now joining or you're starting your career in the medical coding or the billing, what is the future growth? So this is the must part will. And how to get the right training, especially if you want to start anything, not in the medical coding, not in the any I mean whatever any skill set you are working, definitely you must know to you'll get the right training, because right training get you the right perfection. Okay, so we will just work on this all the topics in the webinar. So okay, one by one I will take this. So first of all, US healthcare and the patient billing cycle. So this is the major part. Until unless you will not know, जब तक आपको ये पता नहीं है कि US healthcare कैसे वर्क करता है, आप मेडिकल कोडिंग या बिलिंग के बारे में नहीं जान सकते. You can't understand until unless you don't know what is the procedure, right? So in this, वन बाय वन आई लेट यू नो एवरीथिंग कि यूएस हेल्थ केयर वर्क कैसे करता है. बट यूएस हेल्थ केयर के पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा इंडिया का हेल्थ केयर कैसे वर्क करता है, राइट? इन इंडिया व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू. सो इंडिया में क्या होता है कि इफ यू फील इल, जैसे आपको कोई मतलब फील होता है कि आप बीमार हैं, यू आर फील द इल, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इधर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं डॉक्टर से वाया फोन, और या तो फिर आप वहां जाके यू विल गिव कि समवन इज देयर, अटेंडेंट बैठा रहता है कि आपका नंबर लिख लेता है वो कि आप चौथे नंबर पे, आप पांचवें नंबर, दैट काइंड ऑफ स्केड्यूल होता है, राइट? तो इंडिया में ऐसा होता है. फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस या तो आप डॉक्टर को दे देते हैं या फ्रंट डेस्क में जो अटेंडी रहता है वो पहले ही फीस ले लेता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन देके, आई मीन डॉक्टर के पास अंदर भेजने से पहले. फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कुछ ड्रग्स, कुछ लैब टेस्ट. उसके बाद आप जाते हैं लैब में टेस्ट करवाते हैं मेडिकल से,
मेडिसिन लेते हैं और फिर आप घर आ जाते हैं। बट ये सारे सर्टन पार्ट्स होते हैं, डॉक्टर के पास जाना, लैब के पास जाना, मेडिकल जाना और वहां से आना। या अगर ये बात करें तो ये आप एक ही दिन में कर दे। अगर आप हॉस्पिटल भी एडमिट होते हैं, ठीक है, तो पहले हम आउट पेशेंट की बात कर लेते हैं, जैसे आप घर आ जाते हैं तो हर एक जगह पर आप खुद पैसे पे करते हैं, राइट। यू कैन पे एवरीथिंग, डॉक्टर की फीस 250 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, एंड लैब में आपने 500 दिए, मेडिसिन आपने 1000 की ली, तो आपने सब जगह आउट ऑफ पॉकेट, अपने पॉकेट से पैसे पे कर रहते हैं, ठीक है। एंड देन आप घर आ जाते हैं। अगर आप इंश्योर्ड हैं, अगर आपके पास इंश्योरेंस है, तो बाद में आप वो सारे बिल असेंबल्ड करके आप फिर इंश्योरेंस को सेंड करते हो, ठीक है, कि ये इतना अमाउंट मेरा हुआ। इंश्योरेंस उसमें से चेक करता है कि क्या वो कवर करता है, क्या नहीं करता है, और आपको पेमेंट दे देता है। नहीं करता है तो नहीं देता है, और कवर होता है तो कुछ अमाउंट उसका पे कर देता है। एंड अगर हॉस्पिटल की बात करें, अगर हॉस्पिटल एडमिशन होता है, तो सारा हॉस्पिटल में दो टाइप का होता है। या तो वो आजकल नाउ डेज देयर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो कैशलेस बोलते हैं, जिसको कैशलेस हो गया है कि वो वहां पे आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, लास्ट में लमसम जो बिल होता है आप इंश्योरेंस को सबमिट कर देते हो पूरा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एंड ऑफ द डे मींस एंड ऑफ द पीरियड। और या तो फिर आप पूरा ट्रीटमेंट खुद अपने अमाउंट पे बियर करते हो और बाद में सारा बिल जो रहता है वो इंश्योरेंस को सबमिट कर देते हो। तो ये हो गई इंडिया की बात। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द यूएसए, वहां पे आपको अपने पॉकेट से पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे एवरीवन इज इंश्योर्ड, लाइक इन इंडिया नॉट एवरीवन इज इंश्योर्ड, दिस इज द मेजर पॉइंट गाइस। इन इंडिया जो इंश्योरेंस लेगा उसी के पास इंश्योरेंस होगा, लेकिन यूएस में इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योर्ड होना ही पड़ेगा, तभी आप वहां पे हेल्थ केयर पे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इफ यू आर नॉट इंश्योर्ड, डेफिनेटली डॉक्टर, प्रोवाइडर, लैब, मेडिकल कोई भी आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो वहां पे दैट इज द नेसेसिटीज कि द बर्थ ऑफ द बेबी, आफ्टर 2 मंथ ही हैज और शी हैज हिज और हर ओन इंश्योरेंस, उसका खुद का इंश्योरेंस हो जाता है आफ्टर 2 मंथ। टिल द 2 मंथ वो मॉम के इंश्योरेंस पे कवर रहता है, बट जैसे 2 मंथ क्रॉस होता है उसका खुद का सेल्फ इंश्योरेंस हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे स्टेप जो अब नाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, दैट इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू कि दे गॉट इंश्योरेंस आफ्टर 2 मंथ ऑफ द बर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले जब अगर कोई भी पेशेंट इल होता है तो उसका सबसे पहले यहाँ पे इंश्योरेंस वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो इंश्योर्ड है कि नहीं, प्रॉपर इंश्योरेंस उसका कवर हो रहा है कि नहीं, जिसकी सर्विस के लिए वो आ रहा है, आई मीन डॉक्टर के पास जिस चीज के लिए आ रहा है वो। फिर आता है डेमोग्राफिक एंट्री, उसका पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एंट्री मतलब किस रीजन से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से है, मेल है या फीमेल है, एज, उसका जेंडर, उसका लोकेशन, एवरी इंफॉर्मेशन दे आर पुट इन दिस वन, ठीक है। फिर ये जो पार्ट है थर्ड वाला, जिसके बारे में आज हम इन डेप्थ डिटेल डिस्कस करेंगे, वो है आईसीडी, सीपीटी एंड हिकपिक्स कोडिंग। दिस इज एचसीपीसीएस नोन एट हिपिक्स, ओके, हिपिक्स कोडिंग। तो ये वाला जो पार्ट है थर्ड नंबर स्लाइड, दैट इज नोन एज द मेडिकल कोडिंग, ओके। तो मेडिकल ये पूरा जो साइकिल दिख रहा है आपको, टोटल 9 स्टेप, दिस इज नोन एज रेवेन्यू साइकिल, उसमें थर्ड नंबर का पार्ट बस मेडिकल कोडिंग है। और 1, 2 and 4 to 9 that is totally known as medical billing, okay। देन फोर्थ नंबर पे हमको चार्ज एंट्री, कि जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसके लिए चार्ज मतलब कितना अमाउंट बनता है, राइट, तो दिस इज नोन एज चार्ज एंट्री। फिर क्योंकि इंश्योरेंस के पास हमको भेजना है, सारा चीज इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है, तो चार्ज एंट्री जो भी अमाउंट होता है हम इंश्योरेंस को सेंड करते हैं क्लेम सबमिशन में। फिर क्लेम सबमिशन करने के बाद इंश्योरेंस चेक करता है कि जो सर्विस दी गई है वो हमारे में कवर होती है कि नहीं, जो सर्विस जिसके लिए इंश्योरेंस ने साइन किया होता है, ठीक है, पेशेंट के साथ। तो वो सर्विस अगर कवर होती है तो वो पेमेंट कर देते हैं, अगर नहीं होती है तो उसको डिनायल कर देते हैं। डिनाइड, द वर्ड डिनायल कम फ्रॉम द डिनाइड, मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो रिजेक्ट करने के बाद वापस से इस पे वर्क किया जाता है कि रिजेक्ट क्यों किया गया। अगर हम इंश्योरेंस को कन्विंस करने में कन्विंस कर लेते हैं अगर हम, ओके, सक्सेसफुली, तो हमको इंश्योरेंस वापस अमाउंट पे कर देता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पे रिजेक्ट माना जाता है। और कन्विंस करने के बाद हम एआर फॉलोअप चेक करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, एआर का फुल फॉर्म है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, या अमाउंट अमाउंट बोल सकते हैं, जनरली अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। तो अमाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में आया है या नहीं, या क्यों नहीं आया है, वो यहाँ पे फॉलोअप लिया जाता है आफ्टर दिस, ओके, डिनाइल होने के बाद। और जब अगर पता चल जाता है कि रिजेक्ट ही हो गया है या पेमेंट आ गया है, अकॉर्डिंग टू दैट एक रिपोर्टिंग की जाती है पेशेंट को और प्रोवाइडर और इंश्योरेंस को, ओके। तो दैट इज नोन एज द रिपोर्टिंग। तो ये कंप्लीट साइकिल जो होता है इसको बोलते हैं हम
यूएस हेल्थ केयर का रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ओके, द थर्ड नंबर पार्ट इज ओनली मेडिकल बिलिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी रिमेन जो सब कुछ है वो है मेडिकल बिलिंग। सो यस, सो द नेक्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू, ये कंप्लीट मैंने शॉर्ट्स में बताया 9 पार्ट में। ये है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इन द डेप्थ डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं पहले स्केड्यूलिंग रजिस्ट्रेशन होता है, फिर इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, पेशेंट कोपे कलेक्शन। पेशेंट कोपे कलेक्शन क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे अगर आपका बिल $100 का बनता है, तो उसमें से $20 आपको हर बार अपने पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि पर्टिकुलर डॉक्टर को एक सर्टेन अमाउंट में कुछ अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस है तो अमाउंट 30 to 45 डेज के बाद आता है। सेकेंड थिंग, फॉल्स फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस ही पैसा देने वाला है पूरा, तो जरूरत नहीं, तब भी वो तीन तीन विजिट लेगा डॉक्टर की मंथ में, जरूरत 2 की ही है। तो क्या करते हैं कि फॉल्स फ्रीक्वेंसी को डाउन करने के लिए एक पर्टिकुलर कोपे अमाउंट लगाया गया है। तो पेशेंट को पता है कि यार मेरे को $20 तो पे करना ही है, तो हर बार अगर $20 खुद करना पड़े तो वो जबरदस्ती 3 फ्रीक्वेंसी नहीं लेगा जहां 2 की जरूरत है। ओके, तो दैट इज द कोपे कलेक्शन। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजिट। अब ऑब्वियसली अगर मेडिकल कोडिंग में आप यहाँ पे 3 बुक्स यूज कर रहे हैं, आईसीडी सीपीटी एपिक्स, डिटेल में बताऊंगा मैं, तो इसके लिए आपको कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो जो प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर के चेम्बर में जो भी बातें होती हैं, पेशेंट का चेक करता है वो, उसके वाइटल्स लेता है, उसको कोई प्लान बताता है कि ऐसे ऐसे हमको करना है, या प्रिस्क्रिप्शन जो लिखता है, वो सारा का सारा एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बनता है 4th नंबर में, और उसके बेस पे ही हम यहाँ पे मेडिकल कोडिंग करते हैं। ओके, देन डेमो एंड चार्ज एंट्री। उसके बाद क्लेम्स चेक होता है कि सही है, यानी क्लेम्स इंश्योरेंस में भेजने के पहले इंश्योरेंस को भेज देते हैं तो सबमिशन, अगर सही सब कुछ सही है तो पेमेंट मिल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिनाइल हो जाता है। डिनाइल होने के बाद वापस वर्क करते हैं क्यों डिनाइल हुआ है, और उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे एआर टीम जो रहती है अकाउंट रिसीवेबल, वो यहाँ पे चेक करती है, और फिर भी लगता है कि नहीं हमको पेमेंट मिलना चाहिए तो अपील करती है कि दैट इज द अपील विद द डॉक्यूमेंटेशन। और जब यहाँ पे कंप्लीट कंफर्मेशन हो जाता है पेमेंट होगा या नहीं होगा, तो एक स्टेटमेंट पेशेंट को और प्रोवाइडर को, आई मीन डॉक्टर को सेंड कर दिया जाता है। सो दैट इज टोटल 12 slide complete revenue cycle where we are stand in the 5th number, medical coding. Okay, so now in the depth detail we will discuss about the medical coding. So अब मेजर क्वेश्चन होगा यहाँ पे काफी लोगों को कि नाम तो सुना है बट नहीं पता कैसा होता है, क्या होता है, या मे भी कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। कई बार होता है कि आई मीन हम इतना अवेयर नहीं है अभी भी यूएस हेल्थ केयर को लेके। सो आई अंडरस्टैंड, तो मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल बताता हूँ कि मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग आर टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली टू क्लोजली रिलेटेड इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो मेडिकल कोडिंग ही नहीं हुआ तो ये सामने की सारी प्रोसेस रुक जाएगी मेडिकल बिलिंग की, क्योंकि ये कोडिंग होने के बाद ही ये सब चलती हैं। और अगर कोडिंग बस कर दी और ये सब नहीं रहे तो भी पेमेंट नहीं आएगा, तो एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, ये काइंड ऑफ मेड फॉर ईच अदर टाइप। ठीक, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर आप बोल सकते हैं इसमें। किसी एक भी दोनों में मिस हुआ तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टक हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न हेल्थ केयर इंडस्ट्री। होप सो इन इंडिया आप कुछ समय बाद आप ये इंडिया में भी देखोगे, बट लेट्स सी यूएस में तो ये काफी ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स से कंटिन्यू है ये। So what practices are involved in the immensely important reimbursement? So reimbursement मतलब क्या होता है, अमाउंट, पेमेंट। इन जनरल लैंग्वेज जो रिम्बर्समेंट मैं यूज करूंगा, इंश्योरेंस लैंग्वेज में रिम्बर्समेंट बोलते हैं, और नॉर्मल जो हम लैंग्वेज का लेमन लैंग्वेज बोल सकते हैं उसमें हम बोलते हैं पेमेंट। ओके, तो इंपॉर्टेंट है वो पेमेंट लेने के लिए, विच इंश्योर्स दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब डॉक्टर, ओके, पेड फॉर द सर्विस दे परफॉर्मर। सर्विस मतलब जो भी डॉक्टर सर्विसेज देते हैं। तो इंश्योरेंस की लैंग्वेज में यूएस हेल्थ केयर डॉक्टर को वर्ड करते हैं प्रोवाइडर, और सर्विसेज मतलब जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है उसको वो बोलते हैं सर्विसेज इन यूएस हेल्थ केयर लैंग्वेज। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ डॉक्टर डॉक्टर होता है, यूएस में डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ओके, पेयर मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे इंडिया में एलआईसी और मेनी थिंग ना, मणिपाल, ये सब जो है, तो दे आर द इंश्योरेंस कंपनीज। और पेड मतलब जिसका अमाउंट इंश्योरेंस ने दे दिया, डिनायल मतलब जो अमाउंट रिजेक्ट कर दिया। द मेजर थिंग जो आपको बार बार सुनने मिलेगी कि जब भी आप द पर्सन जिनको डू नॉट अवेयर अबाउट द मेडिकल कोडिंग फील्ड, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार ये तो बीपीओ जैसी जॉब है, तुम बीपीओ में काम करते हो। कि जब आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे उनको कभी भी कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो वो बोलेंगे अच्छा बीपीओ जैसा है क्या वो, दैट इज नॉट अ बीपीओ।
Actually, medical coding and billing is based on the KPO. So BPO is known as the business processing outsourcing. Okay, and KPO is known as knowledge processing outsourcing. So यहाँ पे आप BPO में you don't have कुछ रटा रटाया नहीं रहता है आपके पास कि आपको वो जो स्क्रिप्ट दी है आपको वो बोलना है या सेल आउट करना है, आपको ना सेल आउट करना है ना आपको कुछ बोलना है यहाँ पे रटा रटाया। ओके, यहाँ पे यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो नॉर्मल बोर्ड पे चलती है। बोर्ड मतलब आपने लिख दिया और उसका आंसर आ गया। ओके, जैसे वी आर यूजिंग इन द जोमेटो और नाउ इट इज इन द आईपेल, मेनी एप्लीकेशन है जो बोर्ड डाल के रखती हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस लिखा उसमें ऑटोमेटिक उसमें आंसर पॉपअप होता है। तो इसमें आप वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होगा, हर एक पेशेंट की डिसीज अलग होगी, हर एक पेशेंट के सिम्टम अलग होंगे और अकॉर्डिंग टू दैट आपको बिल करना है। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऑटोमेटेड नहीं होती है। ऑटोमेटेशन इज देयर बट यू कांट डू ऑटोमेटेशन इन 100% लाइक यू आर डूइंग इन द बीपीओ। जैसे आप एयरटेल पे रहते हैं, आपने कुछ लिखा *121 और आपको अमाउंट आ जाता है कितना आपका बैलेंस है, और इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हर पेशेंट अलग है, हर इन्फॉर्मेशन अलग है, हर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका एक्शन अलग है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। Okay, so we'll move on the next one. Okay, so एक्चुअली जो हमारा ट्रेनिंग है, जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली हम मेडिकल कोडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिलिंग के लिए राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग सो। अब और मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक करते हुए मेडिकल कोडिंग की तरफ ले जाता हूँ। तो व्हाट इज मेडिकल कोडिंग? मेडिकल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड सप्लाई। अब ये तीन चीज जो इसमें लिखी है पैराग्राफ में, अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो तीन चीजें होती है ना। सबसे पहले आपको डॉक्टर चेक करके बोलता है डायग्नोसिस, डायग्नोस करता है कि आपको कौन सी डिसीज है। नॉर्मल डिसीज, फीवर है, हेडेक है, व्हाट एवर सिम्टम जो है, ठीक है। फिर उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट गोइंग टू द डॉक्टर और डॉक्टर ने उसको बोला कि यू हैव द डायबिटीज, तो प्रोसीजर में क्या चेक करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल। Okay, I think many one is here from the science background. So diabetes is very common, or blood glucose test is also very common, and insulin is also very common. Everyone knows. Okay, तो प्रोसीजर में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेगा कि डायबिटीज का लेवल कितना है, ये हम नॉर्मली कवर कर सकते हैं या इंसुलिन देना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज प्रोसीजर। एंड थर्ड थिंग होती है सप्लाई इन्फॉर्मेशन। सप्लाई इन्फॉर्मेशन मतलब इंजेक्शन, मेडिकेशन। ओके, तो सप्लाई इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे इंसुलिन दिया तो इंसुलिन के लिए सीरीज देगा, इंसुलिन वायल्स देगा। सो दैट इज नोन एज सप्लाई इन्फॉर्मेशन। तो हमको ये तीनों चीज ही कवर करनी है कि डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया, क्या लैब ने प्रोसेस किया और क्या मेडिकेशन दिया। ये तीनों चीज ही हम जनरली पे करते हैं और इन तीनों के रिम्बर्समेंट के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। सो अब प्रॉपरली अगर कोई चीज यहाँ पे वर्क हो रही है ऑन द सिस्टम, तो उसके लिए कोई सिस्टम बेस होना भी जरूरी है, राइट? विदाउट सिस्टम बेस यू कांट डू। तो सिस्टम बेस के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास तीन बुक्स रहती है या तीन सॉफ्टवेयर रहते हैं। ओके, व्हेन यू आर डूइंग द एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक्स रहेगी, और आफ्टर दैट वंस यू आर वर्किंग इन द लाइव इन एनी कंपनी, दैट टाइम यू आर वर्किंग द सेम थिंग इन द बुक्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ओके, तो द थ्री बुक्स और सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इज द ICD-10। ओके, इन डेप्थ में तीनों बुक कैसे दिखती है, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, ये आगे बताता हूँ मैं। जस्ट इंट्रोडक्शन हियर। ICD-10 is the International Classification of Disease. ओके, तो पढ़ के पता चल रहा होगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। मतलब ये जो बुक है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होती है। मतलब अगर आप इसमें जो भी डिसीज का जो भी कोड दिया रहेगा वो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिमिलर यूनिफॉर्म रहेगा। और इसलिए इस बुक को WHO, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इस बुक को रिलीज करती है। सेकेंड होगी CPT, शॉर्ट फॉर्म है, that is a short form, current procedural terminology. Okay, so current procedural terminology is known as जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं उसका इसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। एंड द लास्ट वन इज हेपिक्स, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। हेल्थ हेपिक्स बुक में जो भी सप्लाई होती है उनका पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। सो ये तीन बुक होती है जो बिलिंग एंड कोडिंग पर्पस के लिए यूज होती है। So second thing, the coders. Coders मतलब medical coders need a strong background in medical terminology and anatomy to correctly code procedure and diagnosis identify in the provider मतलब डॉक्टर के documentation में। Obviously जो डॉक्टर का documentation होगा उसमें डिसीज लिखी रहेंगी, तो उसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए। सो वंस व्हेन हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हम टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी इस पे ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाने के लिए कि सो एवरी चैप्टर का हम एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ाते हैं और उसके बाद ही हम उसकी बिलिंग का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं।
And third thing is coder must also understand billing to apply correct guidelines. Every coding is there something guidelines. Okay, वो guidelines का एक particular frame section होता है जिसको हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल अप्लाई टू. सो दिस इज द मेडिकल कोडिंग. सो अब बात होगी आईसीडी, सीपीटी और हिपिक्स, तीन बुक्स हैं. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी दैट. तो ये है तीन बुक्स, जैसे इसको बोल सकते हैं वी हैव द सम ऑफ अपनी मैथोलॉजिकल बुक्स होती है, राइट, अपने अपने धर्म ग्रंथ बोलते हैं जिसका. तो यू कैन से कि कोडे कोडिंग के धर्म ग्रंथ है ये, कि अपने आईसीडी 10, सीपीटी और हिपिक्स, इन तीनों बुक या सॉफ्टवेयर के आई मीन एब्सेंस में यू कांट परफॉर्म मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग और रिम्बर्समेंट और यूएस हेल्थ केयर, इनके बगैर इम्पॉसिबल है वो. तो ये तीन बुक्स होती है आईसीडी 10 सीएम जो मैंने बताया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी और हेल्थ केयर प्रोसीजर कॉमन सिस्टम. ओके, सो कंप्लीट हिपिक्स का इंफॉर्मेशन इसमें रहता है, सप्लाई का. सो वन बाय वन वी विल सी. सो फर्स्ट आईसीडी 10 सीएम लेंगे. दिस इज आईसीडी 10 सीएम. तो इन डेप्थ जैसे आगे आप मेडिकल कोडिंग करते हैं या आप इसका ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको ये बुक में जो भी अब बुक्स दिखने में बहुत ज्यादा हैवी दिख रही होगी ना, लॉट्स ऑफ पेजेस, तो एकदम बड़ी है, बट वो बोलते हैं ना जितना बड़ा दिख रहा है, वंस यू विल गेट दैट इसको ड्राइव कैसे करना है, इससे आपको सर्च कैसे करना है, देन इट्स वेरी इजी. फिर आप बोलोगे कि ओके, सो डोंट गो टू द साइज ऑफ द बुक्स, सी द इंफॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली इन दिस. सो प्रीफेस इसमें है, इसमें कोडिंग की गाइडलाइंस जो मैंने बताई आपको कि सम पर्टिकुलर अप्लाई करेक्ट गाइडलाइंस फॉर सम प्रोसीजर, वो सारी गाइडलाइंस इस बुक में रहती है. फिर इसमें दो लिस्ट रहती है कि डिसीज और इंजरीज की, इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ मैं आगे. इंडेक्स में होता है डिसीज एंड इंजरीज, एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरीज, जैसे अगर पेशेंट फॉल हो गया, ट्री से गिर गया और उसको फ्रैक्चर आ गया तो फ्रैक्चर इज द इंजरी, और जो ट्री से फॉल हुआ वो एक्सटर्नल कॉज, उसका रीजन. ठीक है. नियोप्लाज्मा जनरल लैंग्वेज में बात करें तो हम कैंसर बोलते हैं. ओके, नियोप्लाज्मा को जनरल लैंग्वेज कैंसर. तो कैंसर का टेबल है और कौन कौन से ड्रग और केमिकल्स यूज हुए हैं इन सारी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए. एंड फंक्शनली फीचर्स जो रहता है इसमें, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ ये चारों कॉन्सेप्ट कैसे रहते हैं. ये ऐसा होता है जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज के चार टाइप्स होते हैं जनरली, राइट. तो यहाँ पे जैसे हमने जो नॉर्मल टाइप होता है दैट इज नोन एज टाइप 2, सॉरी, टाइप 2. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया है जिसको बोलते हैं E11. ओके, अब E11 जो कोड है इसको आप यूनिफॉर्म कहीं भी यूज करोगे मेडिकल कोडिंग की लैंग्वेज में तो एवरीवन अंडरस्टैंड कि आप डायबिटीज की बात कर रहे हो. ओके, सो दैट इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. आईसीडी 10 का एक पर्टिकुलर कोड है E11. अब इसको जैसे आपको इन रन दिखाता हूँ मैं, यू आर यूजिंग नॉर्मली, गिव मी वन सेक, जैसे एक सॉफ्टवेयर है इस पे आप देख सकते हो. ओह माय गॉड. सो अगर आप लिखोगे E11 मेडिकल कोडिंग, बस इतना लिख दोगे आप, ठीक है. अगर आप E11 मेडिकल कोडिंग लिखोगे तो देखो आपको इसमें आ जाएगा आईसीडी 10 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. गूगल में भी सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको नॉर्मली. ओके, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, सिर्फ आपने E11 लिखा, E11 मेडिकल कोडिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. तो अकॉर्डिंग टू दैट आप समझ सकते हो कि दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर. ओके, अगर आप E11 यूनिफॉर्म कहीं भी अगर आप यूज करते हो तो दैट इज यूज फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. तो इस अकॉर्डिंग टू दैट इसमें लॉट्स ऑफ देयर सेक्शन. अब डायबिटीज, आई थिंक आपको पता होगा डायबिटीज से बहुत सारी डिसीज रिलेट रहती है. हाइपर सॉरी क्रोनिक किडनी डिसीज, हार्ट फेलियर, कीटोएसिडोसिस, स्किन डिसीज, न्यूरोपैथी. तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इन दिस सेक्शन सामने के सारे E11 है, that is C, all E11 is given, और पीछे के लेटर्स चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैनिफेस्टेशन या बोल सकते हो उससे रिलेटेड डिसीज के लिए. ओके, तो ये E11 है. अब वर्किंग ऑन दैट पार्ट इन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो हम चेक करेंगे वो रहेगा, एक सेकेंड, लाइक ये सॉफ्टवेयर अगर हमने इस पे E11 लिख के एंटर किया, ओके, दिस इज मेडिकल कोडिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो आप बुक में भी देख सकते हो. तो इसमें E11 में आपको ऐसा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आ जाता है, राइट. और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के इतने सारे कोड हैं. अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो उसके विथ जो मैनिफेस्टेशन है या उससे रिलेटेड डिसीज है उनके साथ है, तो सबके सामने E11 लिखा रहेगा. इसका मतलब ये सारे के सारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड है. सो दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई particular disease in this book.
ओके, ICD-10। नाउ विल गो टू द CPT। अब जैसे मैंने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज है, तो टाइप 2 डायबिटीज पता करने के लिए कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर देख के तो बता नहीं सकता कि यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, उसके लिए उसको कुछ लैब टेस्ट लेने पड़ेंगे। सो दैट लैब टेस्ट, उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, वो सारे प्रोसीजर हमको मिलते हैं इस CPT बुक्स के अंदर। जैसे नॉर्मली कौन सा टेस्ट हो सकता है डायबिटीज के लिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट, ओके, या तो स्ट्रिप टेस्ट करते हैं हम उसमें। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आइडेंटिफाई करके ही हम बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज का लेवल कितना है। सीवियर डायबिटीज है, डायबिटीज डाइट कंट्रोल हो जाएगा, आप डाइट में कंट्रोल करते हो तो डायबिटीज आपका कंट्रोल हो जाएगा। या तीसरा होता है बॉर्डर लाइन, मतलब अभी वो है नहीं प्रॉपर, मतलब हो सकता है कंडीशन बॉर्डर लाइन चल रही है। तो ये 3 तरीके हैं चेक करना। तो आप ये आइडेंटिफाइड डायबिटीज को इस लेवल पे करते हो बाय द प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर होगा इन दिस कंडीशन, उसके लिए हमको ऑब्वियसली कुछ प्रोसीजर किया तो लैब में जाना पड़ेगा। और अब डॉक्टर ने तो डायग्नोसिस के पैसे ले लिए, डायबिटीज डायग्नोस करके डॉक्टर ने यहाँ अपना अमाउंट ले लेगा। लैब में जब आप जाओगे तो लैब में उसका चेक करने के लिए जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो ऐसा चेक होता है। आई मीन टेल यू ऑन दैट पार्ट। ये ग्लूकोज क्वांटिटेटिव ब्लड रिएजेंट स्ट्रिप, ये सारी चीजें। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था डायबिटीज के लिए, बट CPT बुक में क्या होता है, मेडिकल, सर्जिकल, कोई भी सर्जरी हुई है और कोई भी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हुई है, जैसे बोलना चाहिए ब्लड टेस्ट, लिपिड टेस्ट, लॉट्स ऑफ यूरिनरी टेस्ट, सारे टेस्ट जो रहेंगे वो आपको इसमें इसी बुक में मिलेंगे। और ये जो बुक होती है ये यूनिफॉर्म होती है और अगेन अलोंग द वर्ल्ड, ताकि पेशेंट, कोडर, फिजिशियन, ओके यू कैन सी हियर, फिजिशियन, कोडर, पेशेंट एंड सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनको पता रहे कि पर्टिकुलर इस कोड के लिए इतना अमाउंट पे करना है, ताकि कोई भी बीच में डिस्क्रिपेंसी मत हो कि डॉक्टर बोले मैंने तो इतना किया था, लैब वाला बोले मेरे को तो इतना मिलना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। उसके लिए यूनिफॉर्म बोल दिया कि भाई ब्लड ग्लूकोज टेस्ट का $100 लेंगे, तो $100 एक फिक्स अमाउंट है, चाहे आप किसी भी लैब से कराओ यूएस की, आपको उस रीजन की, आई मीन जैसे आपने यूएस के आपको स्टेट को कवर करते, जैसे आप डेलावेयर करते, तो डेलावेयर के स्टेट में उस पर्टिकुलर कोड के लिए $100 आप किसी भी लैब से कराओ, फिक्स अमाउंट रहेगा। और सेम E11 जैसे लिया हुआ डायबिटीज के लिए उस प्रोवाइडर को उतना ही अमाउंट फिक्स मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इंडिया जैसे नहीं होता है कि एक डॉक्टर एक्सपर्ट है तो उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, फीस उसकी 1,000 रुपए रहेगी, और एक छोटा क्लिनिक है तो 250 रुपए रहेगा। तो यूएस में ऐसा नहीं होता, यूएस में दैट सीन इज द यूनिफॉर्म, कि ठीक है इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इस एरिया रीजन के लिए इतना ही फीस है, चाहे डॉक्टर वो कितना भी एक्सपर्ट हो और एक चाहे डॉक्टर एकदम बिगिनर हो, अमाउंट उनको उतना ही मिलेगा। तो यूनिफॉर्मलिटी रहती है इसमें, बोलना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज बात करो तो धांधली नहीं होती है इसमें, ओके। द थर्ड थिंग, मेजर जो चीज है, जो प्रोसीजर होते हैं वो क्या होते हैं, इवेल्यूशन एंड मैनेजमेंट। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो डॉक्टर के पास हम आते हैं और जो भी डॉक्टर चेकअप करता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं इवेल्यूशन और उसका मैनेजमेंट डिसीज का। फिर आता है अगर सर्जरी देनी है तो एनेस्थेसिया देना पड़ता है, तो एनेस्थेसिया के कोड जो रहेंगे प्रोसीजर के इस लेवल में रहेंगे। फिर जो भी सर्जरी होगी बॉडी में, देयर एनी सिस्टम की एनी सर्जरी होगी वो इस सेगमेंट में कवर होती है। फिर रेडियोलॉजी, फ्रैक्चर और अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी एंड लैब, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड एवरीथिंग, एंड द मेडिसिन, जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएगी। तो मेजर इसके 6 सेक्शंस होते हैं इस बुक के, ओके। सो कम बैक टू द पॉइंट कि अगर लैब टेस्ट होता है तो लैब टेस्ट का एक कोड है, देखो 82947, ओके। तो ये है ग्लूकोज क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। क्योंकि मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ शुरू से, तो मैं आपको पूरा चीज डायबिटीज के फॉर्म में समझाता हूँ। तो ये जो कोड है 82947, अगर इस कोड को आप एंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में या बुक में देखेंगे आप, तो बुक में इसमें आपको सब डिटेल मिलेगा 82947। तो इसमें यू विल गेट दैट ग्लूकोज क्वांटिटेटिव ब्लड, सी। तो इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि ग्लूकोज क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट किया था, स्ट्रिप यूज नहीं हुई है इसमें, उसका पूरा डिटेल है ये कैसे कैसे यूज हुआ था। एंड आफ्टर दैट अगर उसको आपको फीस देखना है तो आपको पर्टिकुलर फीस देगी कि मेडिकेयर, देयर इंश्योरेंस अलग है, इंश्योरेंस आपको मैं अलग से बताऊंगा जो डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं, तो उसका पर्टिकुलर कितना अमाउंट मिलता है। तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट का इन यूएसए 3.93, चाहे आप हॉस्पिटल में जाओ, चाहे क्लिनिक में जाओ, चाहे लैब में जाओ, आपको इतना ही पैसा पे करना है सब जगह, 3.93, ओके। 3.93 अराउंड $4 इसका प्राइस है। तो ये कहीं भी आप यूज करोगे आपको $4 ही पे करना रहेगा। देन वी विल गो द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे CPT की बुक में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक चीज है जो मेजर है, आपने अगर पॉइंट आउट किया कि नहीं किया, यहाँ पे आपको जो पहला लेटर है वो हमेशा अल्फा मिल रहा है, राइट।
और दूसरा हमेशा न्यूमेरिक। ICD-10 में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अल्फा होता है, अल्फाबेट्स, दूसरा होता है न्यूमेरिक लेवल पे, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ओके, और हर 3 कोड के बाद एक डेसिमल पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। और सीपीटी में ये जो चीज होती है ये टोटली नंबर होती है 5 डिजिट की, इसमें कोई भी अल्फाबेट्स नहीं होता है। अल्फाबेट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे होते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, बट हम इसके बारे में इन डेप्थ लेटर डिस्कस करेंगे, और ये बहुत कम यूज होते हैं। मेजर जो यूज होता है सीपीटी आप यहाँ देख रहे होंगे सब नंबर में ही है, 5 डिजिट नंबर न्यूमेरिकल्स। ओके, देन थर्ड आएगा हिपिक्स। तो हिपिक्स जैसे मैंने बोला कि ये सप्लाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने जैसे इंसुलिन की बात कर लेते हैं, या तो हियरिंग एड की बात कर लेते हैं, स्पेक्स की बात कर लेते हैं, फ्रैक्चर है तो प्लास्टर्स जो हो गए, स्लिंग्स हो गए जो पट्टे वाला रहता है, और व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो जो सारी चीजें हैं, जो इक्विपमेंट, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे आपने देखा टेम्पररी कोर्स पर ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, तो जीबी डीएमई बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो डीएमई है, विजन, हियरिंग एड्स, एवरी इंफॉर्मेशन जो भी सप्लाई प्रोवाइड होती है, सप्लाई वर्ड सप्लाई, सप्लाई गेटिंग फ्रॉम दैट बुक्स, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस बुक में मिलता है आपको, हिपिक्स का लेवल का। अगर बात की जाए पर्टिकुलर रिम्बर्समेंट में, तो आईसीडी और सीपीटी जो है वो होते हैं मेजर 80% यूज में, 20% यूज होता है हिपिक्स लेवल का। ओके, तो हिपिक्स में जैसे मैंने बात की इंसुलिन की, मैं शुरू से बात करते आ रहा हूँ डायबिटीज की डायग्नोसिस से, सेकंड टेस्ट की बात की। अब अगर इंसुलिन सॉरी डायबिटीज सीवियर है तो पर्टिकुलर पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंसुलिन का जो कोड है, जैसे इसमें J1815 लिया है, सो आई शो यू इन दैट सॉफ्टवेयर, इसमें थोड़ा क्लियर दिखेगा। दैट स्क्रीनशॉट इज आल्सो फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको लाइव दिखा देता हूँ कि लाइव आपने जैसे J1815 लिखा, कोई कोड कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस बुक। ओके, तो कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जाएंगे, आप देखेगा J105 इंजेक्शन इंसुलिन पर 5 यूनिट, पर 5 यूनिट मतलब इंसुलिन का 5 यूनिट के लिए ये वाला कोड है। सेम अगर अब इसमें आपको और देखना है एडिशनल कोड इन्फॉर्मेशन, ये सारे इंसुलिन के नाम दिए हैं, इतने सारे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, नोवोलिन, नोवोलॉग, आई थिंक फार्मेसी बैकग्राउंड से जो लोग हैं इनको नाम इजीली पता होगा, हिमेलॉग, नोवोलिन, लेंटस, लेंटस इज मेजरली यूज। ओके, so that all the brand name of that drug, जिनके लिए सेम एक ही कोड होता है। अब चेक करने की बात यह है कि यहाँ पे इतने सारे ब्रांड नेम है इंसुलिन के, पर उन सब के लिए एक ही कोड ही आएगा। तो दैट इज द यूनिफॉर्मिलिटी। आप इंसुलिन का कोई भी ब्रांड, कोई भी इंजेक्शन यूज करो, ओरल, नॉट ओरल, दैट इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ओके, कोई भी यूज करो, सबके लिए एक ही कोड है, सी यूनिफॉर्मिलिटी। ऐसा नहीं है कि नोवोलिन के लिए 6 है, 18156, और सारोलेंटस के लिए 7, ऐसा नहीं है, ये सारे एक ही कैटेगरी में फॉल होते हैं, सबके लिए एक यूनिफॉर्म कोड है J1815। ओके, एंड सेम थिंग, जैसे इंसुलिन का कोड है वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रग के मिलेंगे, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के लिए 1210 है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग ड्रग के अलग अलग कोड होते हैं। जैसे इंसुलिन के सारे ब्रांड के लिए एक ही कोड है J1815। so that information given in that HIPICS book, give me one sec, ये हिपिक्स बुक में ये इन्फॉर्मेशन आपको हिपिक्स में मिलेगा। so that is the information, वो जो सेम आपको मैंने दिखाया उसका स्क्रीनशॉट ये है। एंड द मेजर थिंग, तो यहाँ पे कवर हो जाता है हमारा व्हाट इज द मेडिकल कोडिंग। ओके, मेडिकल कोडिंग में हमको क्या करना रहता है, किसके थ्रू हम क्या करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे कैसे मिलती है। इफ यू गाइस ज्वाइन द ट्रेनिंग, तो इन बुक्स को कैसे यूज करते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो द अगेन द सेकंड थिंग कि कौन कौन सी कंपनीज है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी फील्ड चूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, कौन सी कंपनी से जो रन हो रही है, और उन कंपनीज का स्टेटस क्या है। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए तो आई थिंक यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स होंगे या काफी लोग होंगे जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, राइट, अक्रॉस द इंडिया। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें मेजर कंपनीज जो है इसके नाम सुने होंगे। ऑप्टम का आई डोंट नो, ऑप्टम यूनाइटेड हेल्थ केयर नहीं सुना। दिस इज द इंडिया की, अगर बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, सबका बोलते हैं कि यार हमारा ये मेजर वर्ल्ड, जैसे मक्का मदीना बोलते हैं या अपने जो होते हैं उस टाइप से, तो ये बोलना चाहिए द बिगेस्ट वन ऑफ द मेडिकल कोडिंग, यूनाइटेड हेल्थ केयर। यूएस का 70% इंश्योरेंस ये कवर करते हैं, यूनाइटेड हेल्थ केयर। तो दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज इन इंडिया, हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, वहां पे ये है। ओके, देन यू विल गो द टीसीएस। टीसीएस का नाम तो आई थिंक सबने सुना होगा, इंडिया में तो सब जगह टीसीएस है ही, किसी न किसी फॉर्म में तो अवेलेबल ही है। तो टीसीएस ऑल्सो गिवन द मेडिकल कोडिंग। ओके, देन कोग्निजेंट भी आपने सुना होगा।
कोटिविटी दैट इज द फेमस इन द पुणे। सो कोई भी पुणे के स्टूडेंट अगर हमारे साथ होंगे डेफिनेटली कोटिविटी जानते होंगे, उनको यहाँ पे सीएमआई भी बोलते हैं। ओके, सो कोटिविटी आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द सीएमआई, बट देयर लोगो इज कोटिविटी। एसेंच्योर भी आपने सुना ही होगा। देन डेलॉयट, एवरीवन नोज डेलॉयट, हैदराबाद और बेंगलोर रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है, दे हैव द बिग ऑफिसेस फॉर दैट। गिफ्ट्स फॉर द मुंबई, सो ऑल मुंबई स्टूडेंट्स गिफ्ट्स, उनका ये समझो कि जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर पूरे इंडिया का है, मुंबई का तो गिफ्ट्स है। देन डेल, एवरीवन नोज डेल। डेल, सी द वन थिंग डेल के नाम से बताना चाहूंगा मैं, जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं मेडिकल कोडिंग, दैट इज एक्चुअली द हेल्थ केयर आईटी। या जो भी काम होता है आपको पूरा एनवायरनमेंट आईटी एनवायरनमेंट जैसे मिलेगा, जैसे आईटी में होता है ना जो वर्क कल्चर रहता है, जो ऑफिस कल्चर रहता है, 5 डेज वर्किंग, 2 डेज सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 8 आवर्स वर्किंग आवर रहता है, और मतलब ड्रेसिंग, जो जो भी वर्क कल्चर एनवायरनमेंट आईटी का रहता है, सेम वर्क कल्चर एनवायरनमेंट आपको मेडिकल कोडिंग में देखने मिलेगा। दैट्स व्हाई इसको एक्चुअल में डेल ने सही लोगो यूज किया है, दैट इज नोन एज हेल्थ केयर आईटी। एंड मतलब रियली थैंकफुल टू डेल कि उसने सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है कि दिस इज अ हेल्थ केयर आईटी मेडिकल कोडिंग। तो जो डेल का मेडिकल कोडिंग सेक्शन है और मेडिकल कोडिंग बिलिंग का, दैट इज नोन एज डेल हेल्थ केयर आईटी। Then Omega Healthcare, that is from the Bangalore. HGS Bangalore Hyderabad, Anthelio Hyderabad Bangalore, Atos V Technology Hyderabad Bangalore, and Elico also Bangalore. So major साउथ में इसके काफी है, मुंबई साउथ, और nowadays in North India is also covering. गुजरात भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, मुंबई तो है ही। सो दैट ऑल द कंपनीज जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। सी वन मेजर थिंग मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस स्लाइड में मैं इतना ही ले सकता था जो मेजर है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो नाउ अडेस मेडिकल एंड कोडिंग एंड बिलिंग करवा रही हैं, बट इस स्लाइड में मैं ले नहीं सकता था, तो मैंने आपको जो मेजर टॉप रेटेड है जिसका नाम आपने सुना होगा उनके नाम रखे हैं मैंने। ओके, सो फॉर द अदर स्टूडेंट जो मतलब दैट इज फॉर ऑल ओवर द इंडिया, जो मेजरली गुजरात से बिलोंग करते हैं, या मेजर कुछ बहुत सारे अहमदाबाद से। आई पुट द स्लाइड फॉर द अहमदाबाद बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द मेडिटेप। ओके, मेरी कंपनी है मेडिटेप जहां मैं काम कर रहा हूँ अभी। सो दैट इज द मेडिटेप। सो ये अहमदाबाद वालों के लिए मैंने स्पेशली रखा है, बिकॉज दे आर क्वेश्चंस की साउथ में और वहां तो है, व्हाट एग्जैक्टली इन द अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में मेडिटेप हो गया, ई क्लिनिक। अब ये मेजर नाम आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ ये अदर अक्रॉस द इंडिया मेडिसिन जो कंपनी एडवांस मेड ये पुणे में भी है, तो ये अलग अलग जगह पर भी है, पर एक्सक्लूसिवली मैंने ये स्लाइड अहमदाबाद के लिए रखी है। तो मेडिटेप, ई क्लिनिकल वर्क्स, एडवांस मेड और मेडिटेप, आई ग्लोबल, ओके, सानविल, एडवांटेज, एक्सिल भी है, एक्यूकोड, जेनेरा एंड द अदर्स ऑल्सो। कुछ के नाम तो मैंने इसमें लिखे भी नहीं है अभी, पर ये जो मेजर कंपनीज है जो अभी मेडिकल कोडिंग करवा रही है एंड बिलिंग। ओके, सो दैट इज द म्यूलर प्रोस्ट मैंने नहीं लिखा है इसमें अभी, सो एसजीएन नहीं लिखा है मैंने, so they are the other companies, but ये टॉप 9 रेटेड कंपनीज है जो अभी अहमदाबाद में वर्क करा रही है। देन द मेजर थिंग, बेनिफिट्स एंड पर्क्स, कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट। डेफिनेटली एवरीवन देयर राइट, सबका राइट से ये पता करना कि अगर हम इसमें आते हैं तो हमको मिलेगा क्या, पहला क्वेश्चन ये होता है, राइट। सो बेनिफिट्स एंड पर्क्स इन दिस इंडस्ट्रीज, यू विल बी पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब करंट स्टेटस में अगर देखा जाए तो कोविड कंडीशन में आपने देखा होगा आईटी में लोगों की जॉब चले गई, सैलरी डिडक्शन चले, काफी चीजें चली, बट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, देयर आर टू सेक्शन, एक होता है हेल्थ केयर और एक होता है एजुकेशन। दो सेक्शन ऐसे हैं जिनमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, जैसे मैंने तो नहीं देखा है अभी। तो दैट टू सेक्शन, टू सेक्टर देयर नो रिसेशन। तो ये हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री रहती है। अब जैसे आपने कोविड का ले लिया, कोविड के टेस्ट चलेंगे, कोविड का काम चलेगा, तो वो ग्रोइंग में ही रहेगा। अगर कोई चीज डाउन करने भी आती है तो इनका इनके लिए एडवांटेज बन के ग्रोइंग फील्ड में चले जाती है। ओके, तो दिस इज, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। और इंडिया में ऑब्वियसली अभी भी काफी लोग को पता नहीं कि मेडिकल कोडिंग क्या होता है, तो जैसे जैसे एंटर होते जा रही है मेडिकल कोडिंग, एट दे आर एंटरिंग, you will get the more opportunity to grow yourself. You will always be in demand, definitely. Again वही पॉइंट कि अगर इंडिया में काफी लोगों को पता नहीं व्हाट इज द मेडिकल कोडिंग, एंड यू आर नाउ अडेज यू आर बिकम अ मेडिकल कोडर, यू आर ऑलवेज बी इन द डिमांड। अनटिल अनलेस जहां पे नहीं है, यहाँ पे कम कंपनी है, वहां पे तो आप ऑलवेज डिमांड में रहेंगे। देन यू विल बी अर्न अ कॉम्पिटेटिव सैलरी। ये वाला पार्ट है जिसपे थोड़ा सा मेरी बातों पे डिस्क्रिमिनेशन आप लोग को फील होगा, बट एज अ ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ कि काफी लोग जैसे आप अदर फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टअप सैलरी देखते हैं अपने फील्ड में, ओके, डोंट टेक इट इन अदरवाइज वे,
मैं इसको कंपेरेटिव वे में एज अ आई एम गिविंग द वेबिनार वैसा बता रहा हूँ। पर्सनली आई डोंट गिव यू एनी, मतलब मेरा कोई उसमें ओपिनियन नहीं है, बट आपको जस्ट एक मैं आपको वाइड पिक्चर दिखाता हूँ। कंपिटिटिव सैलरी मतलब अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं, क्यूए में जाते हैं, क्यूसी में जाते हैं, और अगर आप, चलो ये अच्छा है कि अगर आप द गायस और द गर्ल्स हु वांट टू बिकम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप किसी अच्छी कंपनी को पिक करते हो पहले ही इसमें, तो दे विल गेट यू विल गेट द गुड सैलरी। ओके, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। बट अगर आपको नहीं मिला, सनोफी टाइप की, सिप्ला भी कमी देती है पर सनोफी ने नहीं दिया, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्कड एज अ MR almost 6-7 months, so I know about the culture of the MR and also know the salary structure and the benefits. So as per my experience बता रहा हूँ मैं, अगर आपको सनोफी जैसी कंपनी अच्छी मिल गई, so you will get the good salary। अगर नहीं मिली तो salary starting is very low, not low, it's very low, because I am also pharmacist as per my graduation, so मैंने वो चीज सफर की हुई है और मैंने देखा हुआ है, so मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। देन द कम्पिटिटिव सैलरी, अगर आप मेडिकल कोडिंग से स्टार्ट करते हो तो एनी हाउ द, मैं आपको भी दिखाऊंगा सैलरी का जो कंपैरिजन है ग्लास डोर साइड से, कि यहाँ पे जब मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं 18,000। ओके, इट इज एवरेज सैलरी 18 to 20,000 के स्लैब में फॉल करती है। जैसे मेडिटेब है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ अहमदाबाद में, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 22,500 रुपीज। 22,000 रुपीज से हम स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर को। सो दैट इज योर चॉइस नाउ, मतलब ये आप अपना खुद का कैलकुलेशन करो, आई एम नॉट गिविंग यू एनी कि ऐसा है वैसा है, आप खुद कैलकुलेट करना, इस बेसिक सैलरी को पकड़ना 18 से 22,000 की, और उसके कंपेरिजन में आप अदर फ्रेशर सैलरी चेक करना, सो यू विल गेट दैट कि व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव सैलरी इन दिस फील्ड। Then educational options, obviously you have lots of certification in this field, so आपके पास हमेशा educational options रहते हैं, आप certification करते जाते हैं, you will get the hike, और skills रहती हैं, not always certification, कुछ skill set भी रहते हैं, जैसे obviously health care है, बहुत सारे diseases होंगे, बहुत सारे sector होंगे, so आपका अगर specialization आप लेते जाते हैं तो आपका career growth, career graph ऐसे ही high होते जाता है। The major thing, you can start a career in months not years, as यूएस का जो सिस्टम है एजुकेशनल और इंडिया का है, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन इंडिया, कि आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 से 5 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं डिग्री लेने, उसके बाद आप जॉब शुरू करते हो। बट दिस इज द जॉब बिकॉज यूएस बेस्ड है, सर्टिफिकेशन भी आपका एपीसी के थ्रू होता है, दैट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। तो वो यूएस में हमेशा वो स्किल्स पे फोकस करते हैं, ना कि आपकी थ्योरी और आपकी डिग्री पे। ओके, सो दैट इज द थिंग, इसमें आप यू कैन स्टार्ट योर जॉब इन द मंथ, मतलब 3 मंथ की अगर आप ट्रेनिंग करते हैं यहाँ से, तो 3 मंथ के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही आपको एग्जाम देके सर्टिफिकेशन आया, नहीं भी आया तो भी आप यू विल स्टार्ट योर कैरियर इन द मंथ, नॉट आपको 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड कम्पिटिटिव सैलरी विद द 3 मंथ, 4 year डिग्री एंड 3 month कोर्स, a competitive salary. Now that's why what actually I want to tell you कि क्या डिफरेंस है। then you will have the opportunity for advancement, obviously जैसे आप मेडिकल कोडर बनते हो, आप उस सेक्शन में आप मेडिकल कोडर, देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एंड देन टीम लीड, ऐसा आप बढ़ते जाते हो, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर द एडवांसमेंट। ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड है तो ऑलवेज इन लर्निंग, इसके लिए आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। यू कैन वर्क फ्रॉम होम, जैसे राइट नाउ वी आर डूइंग, जो भी मेडिकल कोडर राइट नाउ दे आर वर्क फ्रॉम होम, दे विल गेटिंग देयर फुल सैलरी, क्योंकि ये जॉब यूएस बेस्ड है, तो आपको एक आपका खुद का सिस्टम और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ के आप अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, नो नीड टू डू गो टू ऑफिस, फिर वहां से आपको स्टार्ट करना है, काम करना है फिजिकल। जैसे आप अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको मार्केट में डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, मेडिकल जाना ही पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर है तब भी आपको चलो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और अगर इन केस अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हैं तो विदाउट फैक्ट्री आप घर में टेबलेट नहीं बना सकते। बट यहाँ आप वर्क फ्रॉम होम में यू कैन स्टार्ट योर कैरियर जॉब फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन मेक अ डिफरेंस। ये सारी चीजें मैंने बताई यहाँ से लेके यहाँ तक के, दैट इज ऑलवेज you can understand how you make a difference to the others। Okay, then the future growth, obviously you must need to know, if you join this industry तो what is the future growth। ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है 3 साल बाद मेरा क्या होगा, ऐसा मतलब कि बंद हो जाए, तो ये मेजर थिंग रहती है। सो बिकॉज दिस इज यूएस बेस्ड जॉब, तो ये हमारे यहाँ का नहीं है, ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ये यूएस का है। इन द मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग फील्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15% बिटवीन नाउ एंड 2024। ऑनेस्टली आई क्रिएटेड दिस स्लाइड फ्रॉम द मे अराउंड, मैंने ये 18 या 17 मई को मैंने ये स्लाइड बनाई थी, उस समय का ये परसेंटेज था। लेकिन जब से कोविड फॉल हुआ, कोविड का जो कंडीशन आया है, ये 15% बढ़ के 18% हो गया है। 3% एक डिसीज के आने से बढ़ गया इंक्रीज। ओके, सो द ऑलमोस्ट 30,000 जॉब ओपनिंग्स इन द नेक्स्ट 7 years, 30,000 जॉब ओपनिंग्स तो नेक्स्ट 7 years के लिए है।
ओके, विद द ग्रो ऑफ दिस प्राइवेट इंश्योरेंस, द थिंग जो मेरा एक्सपेक्टेशन है और काश ऐसा हो जाए कि इन द ग्रोथ प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर, अगर इंडिया में जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, सुनर और लेटर, आज नहीं तो कल डेफिनेटली हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी यूएस जैसे हो जाएगी। अब इसका एक स्टार्टअप किया है अपोलो ने, आई थिंक एवरीवन हर्ड अबाउट द अपोलो। ओके, गिव मी वन सेक गाइस। Okay, someone asking me. Okay, so go ahead. Uh, where I am. Okay, the Apollo. So अपोलो ने एक स्टार्टअप किया है कि आपने सुना होगा अपोलो का खुद का इंश्योरेंस है, अपोलो म्यूनिक, राइट। और अपोलो के खुद के हॉस्पिटल्स भी हैं, अपोलो के हार्ट हॉस्पिटल्स भी, नॉर्मल हॉस्पिटल्स भी हैं, अपोलो का खुद का लैब भी है, अपोलो डायग्नोस्टिक, और अपोलो का खुद का फार्मेसी भी है, मेडिकल अपोलो फार्मेसी। अब ये सिर्फ चार ही चीज जरूरत पड़ती है यूएस हेल्थ केयर में, जब आपने देखा होगा इंश्योरेंस, हॉस्पिटल या क्लिनिक, उसके बाद आपका लैब, और चौथा आपका फार्मेसी। ठीक है, तो अपोलो ने क्या किया है, एक स्टार्टअप लिया है, अपोलो खुद का कोडिंग कराता है ऑन द सेम सेक्शन, एक कार्ड बना के आपको दे देता है इंश्योरेंस का। आप अपोलो के अक्रॉस द इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं या अपना कार्ड का डिटेल देते हैं, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाता है कि कहाँ से क्या क्या सर्विस किस किस डॉक्टर से ली है। उनके डॉक्टर्स भी उनके खुद के रजिस्टर्ड डॉक्टर है अपोलो के। सो दैट इज द एडवांटेज। तो अपोलो ने यूएस हेल्थ केयर के बेस पे स्टार्टअप किया हुआ है, और इंडिया में अभी काफी सारी कंपनीज भी आ रही हैं यूएस की, जो यूएस इंश्योरेंस की कंपनीज है, दे आर कमिंग इन द इंडिया आल्सो। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, गिव मी वन सेक। आपने जैसे सिग्ना जो है, सिग्ना हेल्थ केयर है, वो है यूएस का, और मणिपाल जो है, मणिपाल आपने सुना ही होगा ना, मणिपाल एवरीवन नो आई थिंक। तो मणिपाल सिग्ना जैसे दिखाता हूँ आपको, मणिपाल इंडिया का है, मणिपाल के कुछ कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, राइट। सो मणिपाल सिग्ना, इसने मणिपाल ने सिग्ना के साथ मिलके दे स्टार्टअप इंडिया में, ये देखो मणिपाल सिग्ना। तो सिग्ना जो है ये यूएस का इंश्योरेंस है, और मणिपाल हमारे इंडिया का है। मणिपाल के कोर्सेज भी बहुत, कॉलेज भी बहुत सारे, काफी फेमस कॉलेज है मणिपाल के। तो मणिपाल ने अपना खुद का इंश्योरेंस ओपन किया है, और साथ में सिग्ना के साथ टाई अप लिया हुआ है, सिग्ना यूएस का हेल्थ, ये दोनों ने मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है। तो दिस इज द वे कि अब कैसा हो रहा है कि आगे आकर यूएस वाले इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ केयर को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये सुनर और लेटर ये इंडिया में भी हो सकता है। और ऑब्वियसली द फिजिशियन ऑफिस, जो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, उनको अगर ऐसा होता है, अभी नहीं भी हो इंडिया में तो यूएस में तो हो ही रहा है, उनको फ्यूचर में मेडिकल कोडर बिलर की काफी नीड है। ओके, सो आउटसोर्सिंग कंपनी, जैसे आउटसोर्सिंग डिफरेंट कंपनीज इंडिया में आते जा रही है, और आउटसोर्सिंग कंपनीज ये हैं जो सारी है, ये इंडिया में बढ़ती जा रही है नंबर वाइज। जैसे कंपनीज बढ़ेगी डेफिनेटली जॉब also increase. So this is the future growth in the medical coding. Now the question I got from someone, I don't know the proper name. This is FP is given. So yeah, this is the answer of your question, FP. The thing is, what is the salary? तो सबसे पहला माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, भाई हमने ज्वाइन तो कर लिया, सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दिस इज द सैलरी, हियर इज द सैलरी सर्व इन इंडिया बाय पॉपुलर वेबसाइट ग्लास डोर। अब आप लोगों ने ग्लास डोर का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कभी आप जाके चेक करना इसके बाद, glassdoor.com या ओके। तो उसमें आई टोल्ड यू, आई मेड दिस स्लाइड 17 18 में, जैसे बताया था राइट, 17 मई तक का अपडेटेड है ये मेडिकल कोडर सैलरी इन इंडिया। तो इसमें 40 सैलरीज ली गई अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट लोवेस्ट से हाईएस्ट सैलरी जो है 40 सैलरी का कंपैरिजन किया, और एवरेज बेस्ट सैलरी जो है, दैट इज द पैकेज यू विल गेट 3.32। दिस इज द एवरेज ना, टॉप हायर एंड द लोवेस्ट, सब 40 सैलरी को पूरा प्लस करके डिवाइड बाय 40 करने के बाद ये पैकेज आ रहा है 3.32। अब मिनिमम 6000 भी हो सकती है, और मैक्सिमम 22 के पकड़ता हूं मैं, वो सबको मिलाने के बाद, दैट इज द एवरेज बेस पे। ठीक है, एंड हियर इन द साइड यू कैन सी, अगर आप मेडिकल बिलर हो, यू विल गेट स्टार्टिंग एवरेज इज 16 के। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में हो, जैसे हमने बोला कि भाई हम तो ये अनदर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो 18 से स्टार्ट करती है। इन मेडिटेम आई एम वर्किंग, उसका नाम लूंगा मैं कि वो 22 देती है। तो ऑन एन एवरेज 18 20 पकड़ लो तो भी एवरेज कितना आ रहा है 20। दो कंपनी की बात किया मैंने, ठीक है, 22 18 20। तो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग अगर आपको आती है तो यू विल गेट 20,000 एवरेज सैलरी। एंड इफ यू आर अ सर्टिफाइड मेडिकल कोडर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द एपीसी, सर्टिफाइड होने के बाद इफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 2 और 3 इयर्स, अब 2 और 3 इयर्स क्यों? क्योंकि यूएस में जो सर्टिफिकेशन होता है सीपीसी का, वो आपको 2 साल के लिए अप्रेंटिस देते हैं।
ओके, अप्रेंटिस होता है 2 ईयर के लिए। जब आप 2 साल काम कर लेते हो और आप अपना सर्टिफिकेट 2 साल का एक्सपीरियंस उनको सबमिट करते हो, तब आपके सामने से वो अप्रेंटिस वर्ड हटा के आपको परमानेंट सर्टिफाइड कोडर का देते हैं टैग। इसलिए मैंने बोला इंडिया में वो रूल नहीं है 2 साल वाला। इंडिया में आपको एग्जाम दे देना है, यूएस में 2 साल कोर्स करने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो सीपीसी का, डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने सर्टिफाइड किया, अप्रेंटिस आपको भी आएगा। तो जब तक आप अप्रेंटिस हो यहाँ पे, तब तक आपकी सैलरी रहेगी फॉलन अराउंड 25, 22 तो नहीं रहेगी, फिक्स बोल रहा हूँ। अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आप 25 से 30 के बीच में आएंगे। और विद इन 1 या 2 ईयर यू आर एज पर योर ग्रोथ, एज पर योर स्विचेस इन द डिफरेंट कंपनीज बोल सकते हो, डेफिनेटली यू विल रीच दिस पैकेज 40 to 45 के बीच का। सो एवरेज इज 43 इन सर्टिफाइड मेडिकल कोडर विद इन 2 ईयर्स। ओके, सो चेक दैट आल्सो टू द अदर सेक्टर जहां आप वर्क कर रहे हो। आपका स्टार्टअप और 2 साल का ग्रोथ अगर इससे मैच करता है कि नहीं करता है। सो दैट इज अ ग्लास डोर। ये मेरे वर्ड्स नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द बिगेस्ट साइट। ग्लास डोर नाम ही है, ग्लास डोर मतलब ट्रांसपेरेंसी 100%। ओके, तो ग्लास डोर का वेरीफाइड है ये, दैट वन। Then this is the salary part. I think happy you will get your answer. I get another question from someone. Okay, I'll give you the answer after that. And then the person who are sending with the chats, okay, so do one thing. At last I'll give you my mail ID and my number is also to you. Okay, so if I'm not able to give your particular answer everything, just send me your mail. Definitely I'll get back to you with the proper answer. Okay, so please pardon for me if right now I'm not able to do that. सो ओके, सो स्किल एंड क्वालिफिकेशन की बात होगी। सो स्किल एंड क्वालिफिकेशन, अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी इज अ मेजर प्लस पॉइंट बट नॉट नेसेसिटी। अगर कोई ऐसा है जो पर्टिकुलर किसी और फील्ड से भी हो बट ही हैज द विलिंग टू डू दिस, तो वो भी कर सकता है। नॉट लाइक दैट कि सिर्फ बायोलॉजी और मेडिकल साइंस वाले कर सकते हैं। बट प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि हेल्थ केयर है, ऑब्वियसली हेल्थ केयर है, अगर आपको बायोलॉजी और साइंस बायो साइंस का अगर आपको नॉलेज है तो इट्स एडवांटेज। ओके, देन स्किल्स, स्किल्स क्या क्या होना चाहिए इसमें। मेडिकल कोडिंग जॉब इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क? बिकॉज आप इसमें विजिट नोट जो आता है, जो डॉक्टर पूरा अंदर पेशेंट से बात करता है, डायग्नोस करता है, आपको एक डॉक्यूमेंट आता है और उसको उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस करते हो, रिव्यू करते हो डॉक्यूमेंटेशन का और सबमिट करते हो क्लेम्स, मतलब कोड करके उसको क्लेम करते हैं अपन। फिर उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है, राइट नाउ अगर बोला जाए तो स्टार्टअप में दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। बट एज पर योर ग्रोथ, जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, डेफिनेटली आप टीम लीड बनोगे या मैनेजमेंट में, या अगर टीम लीड मैनेजमेंट में भी नहीं पर आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हो यूएस के, तो ऑब्वियसली यूएस का क्लाइंट है तो जैसे आपके लिए हिंदी या आपकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज होती है, वैसे उनके लिए तो इंग्लिश ही है। तो दैट टाइम कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन दैट पोजीशन, तब वो आपको इम्पोर्टेंट होता है। बट ऑनेस्टली अगर आपको कितना भी इंग्लिश आया मत आए, वंस यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड 2 ईयर ना, ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश आ जाती है, क्योंकि कन्वर्सेशन आपको करना ही पड़ता है, मेल आपको लिखने ही पड़ते हैं, आप नहीं भी चाहो तो सीख जाओगे। देन द थर्ड इज कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये पॉइंट सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिखा है यहाँ पे स्लाइड में क्योंकि जरूरी है, बट आजकल कंप्यूटर लिटरेसी सबको है। हाउ टू ओपन द विंडोज, कैसे क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट सबको आता है, एक्सेल में वर्क करते भी ऑलमोस्ट सबको आता है। अब ब्राउजिंग तो एवरीवन नोज दैट कि ब्राउजिंग कैसे करना है। सो दैट ही इतना ही पार्ट है जो यहाँ पे हमको नेसेसिटीज होता है। थोड़ा लिटरेसी रहता है जो हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया सॉफ्टवेयर, तो वो तो आपको ट्रेनिंग मिलती ही है। सो या एंड द थिंग इज मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग, जनरली जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये पहला पार्ट भी कवर करते हैं। जो स्टूडेंट नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको भी हम ये पूरा पार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर करवाते हैं, और जो है उनको तो करवाते ही हैं। एंड सेकंड थिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, हाउ टू विजिट नोट, कैसे एक्सेस करना है, कैसे कोड ढूंढने हैं बुक्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, विल गिव दैट इन्फॉर्मेशन। एंड कंप्यूटर लिटरेसी मैंने बोला सबको आती है। So in this coding, we cover that 1, 2, and almost 3 somewhere, somehow, not exactly, somehow we cover the third. और सॉफ्टवेयर चलाना बताना है तो फोर्थ ऑटोमेटिकली कवर्ड। ओके, देन हाउ टू गेट द राइट ट्रेनिंग। सो दिस इज द पार्ट, जैसे मैंने बोला कि सी द राइट ट्रेनिंग इज गिव यू राइट नॉलेज एंड राइट नॉलेज गिव यू द राइट कैरियर। ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अच्छा ट्रेनिंग लिया आपने तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको अच्छा कैरियर मिलेगा, अच्छा कैरियर मिलेगा तो आपको अच्छा प्रमोशन और फिर अच्छा मनी। एनी हाउ अल्टीमेटली गोल एवरीवन होता है कि पैसा अच्छा आना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड में काम कर रहा हो, राइट, और एक कैरियर सिक्योर होना चाहिए। हमेशा हम कोई भी फील्ड चूज करते हैं तो हम इन दो चीजों पर फोकस करते हैं। एक हमारा कैरियर स्टेबल हो, ओके, वो भी इस जो ग्राफ है वो ग्रोथ लेवल में होना चाहिए। दूसरा एक अकॉर्डिंग टू कैरियर ग्राफ ग्रोथ वी विल गेट द मनी। सो स्टार्टअप ही राइट ट्रेनिंग है तभी आप आगे परफॉर्म करोगे। सो चूजिंग द रॉन्ग इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली अगर आपने रॉन्ग इंस्टीट्यूट चूज कर लिया और वहीं पे, दैट इज अ डूम।
एग्जैक्टली क्योंकि वहां से अगर नॉलेज प्रॉपर आपने नहीं लिया है तो सामने का पूरा जो स्टेप है ऑटोमेटिकली डिफेक्ट हो जाएगा। Okay, the job of the medical coder is extremely responsibility, obviously क्योंकि because just of your single code पूरा का पूरा बिलिंग जो है वो डिपेंड करता है। एक कोड आपने गलत कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर $100 का कोड था और आपने उसकी जगह $50 कर दिया, तो डॉक्टर को सीधे सीधे 50% का रेवेन्यू लॉस होगा, मतलब अकाउंट में $50 कम आएंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड कि जो भी आप कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ करो। और ऑब्वियसली उसके लिए आपको राइट ट्रेनिंग, राइट कोड चूज करने के लिए राइट ट्रेनिंग लगेगा ही लगेगा। अ गुड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ऑल स्टूडेंट टू द बेसिक ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। जो हम पढ़ाते हैं हमारा पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन ही होता है, उसके बाद ही हम सीपीसी में आते हैं। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स अदर सच रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्री को जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली आप जब वर्क करोगे इन इंडस्ट्री तभी आपको आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन मेरे को नहीं पता आज तक मैंने किसी को ऐसा देखा हो कि मैंने यार रैपिड इंग्लिश कोर्स की बुक खरीद ली थी और मेरे को अच्छी इंग्लिश आने लगी। सो आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने ऐसा कोई सुना नहीं अब तक, प्रैक्टिकली तो मैंने नहीं देखा। एड बहुत देखे पर रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से किसी को इंग्लिश सीखते मैंने नहीं देखा। वो आपको लाइव परफॉर्म ही करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा कि हाँ, जब आप दो लोग से बातें करेंगे। The thing is the same here, communication skill, and getting trained under a professional coder or builder is also beneficial. That is the point because अगर आप किसी भी, not me, आप किसी भी प्रोफेशनल कोडर या बिल्डर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, उसके अंडर ट्रेनिंग करते हो तो ही और शी नोज दैट कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन द इंडस्ट्री। उसको लाइव सिनेरियोस पता रहते हैं कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, और अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको ट्रेन करता है। तो जब आप जॉब करते हो तो आप उस ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर रहते हो कि हाँ वहां पे क्या चल रहा है। अच्छा मेरे को ये पता था। तो एक बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग चीज होती है और बुक नॉलेज अलग चीज होती है। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल कोडर बिलर के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको लाइव पता रहेगा कि क्या चल रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज, और आपको वही वो डुप्लीकेट करेगा। राइट, द लास्ट थिंग इज स्टूडेंट विद द राइट ट्रेनिंग हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग डिसेंट मनी। जैसे बोला, राइट ट्रेनिंग, राइट नॉलेज, राइट कैरियर, ओके, देन राइट प्रमोशन, राइट सिलेक्शन एंड देन राइट मनी। तो ऑलरेडी एक लैडर ही है। So they can be hired as a billing or coding specialist and also billing medical consultant. Nowadays, इंश्योरेंस कंपनी बिलिंग कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रही है। ये थोड़ा सा नया सेक्शन है। आजकल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि दे आर हायर्ड यू, आपको डिफरेंट इंश्योरेंस का नॉलेज होता है, बिलिंग के लिए है, कोडिंग का नहीं बोला है मैंने इसमें, बिलिंग के लिए है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो दे आर यूजिंग टू गाइड टू देयर पेशेंट्स जो उनके हैं, उनको राइट इंश्योरेंस चूज करने के लिए वो हेल्प करते हैं। सो बिलिंग कंसल्टेंट का भी नया जॉब स्टार्ट हुआ है अभी अभी। ओके, then what exactly we will provide you in this training? So obviously if I'm saying कि यहाँ मैंने बहुत बार बोला कि हम ये करते हैं हम वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली इन दिस स्लाइड इज given. So first, US healthcare and revenue cycle management. Okay, give me one sec, I got someone to work with insurance. Okay, yeah. Okay, so go ahead on that part. So US healthcare and revenue cycle management knowledge. तो obviously जो मैंने आपको स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था उस साइकिल, पूरा रेवेन्यू साइकिल, उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो आप एज अ मेडिकल कोडर यूज करते हो। अब अगर आपको वो नॉलेज पता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात, अगर आपको अल्फाबेट्स पता नहीं है एबीसीडी, तो यू कांट मेक अ वर्ड, और until unless you can't make a word you are not able to मेक अ सेंटेंस। राइट, तो सेम थिंग इज हियर कि हम सबसे पहले आपको यूएस हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का फुल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द पेयर, व्हाट इज द इंश्योरेंस, व्हाट इज द को पे, को इंश्योरेंस, राइट, एवरीथिंग वी विल गिव। देन व्हाट इज द मेडिकल कोडिंग, आज तो मैंने सिर्फ ब्रीफ दिखाया, इसका हम डिटेल बात करते हैं। द थिंग वी प्रोवाइडेड इज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर द प्रैक्टिस। तो जो बुक्स मैंने 3 बुक्स दिखाई है एक्चुअली, दैट बुक्स इज अ वेरी कॉस्टली। स्टार्टिंग में हम उसके आपका सॉफ्ट कॉपी, दाउ वी आर प्रोवाइडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक, वंस यू विल ज्वाइन तो हम इसकी हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ पेएबल, बट सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स हम इसको आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। अराउंड द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 26,000 रुपीज इन इंडिया। अगर आप आईएनआर में बात करें, इंडियन नेशनल रुपीज में, इन यूएसए दिस $249। ओके, so but we are providing the soft copy of books which is totally free cover in this program, and software 1 month सब्सक्रिप्शन, जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया जिसपे मैं काम कर रहा था, आई मीन दैट इज एएमबीए, उसका 1 मंथ का आपको हम सब्सक्रिप्शन के साथ प्रोवाइड करते हैं। द सेकंड थिंग, आईसीडी 10 सीएम जो हमने बात की थी डायग्नोसिस बुक की, उसका फुल नॉलेज विद प्रैक्टिकल सिनेरियोस, क्योंकि आपको लाइव वर्क करना है। See, our focus is not you only clear this exam. Our focus is that once you will clear this exam, before that also you will able to get the job in the live coding field. So that's why we're providing the practical scenarios for this book also and the procedure and HIPIX book also. So thou you are not clear और आपने सोचा कि मैं बाद में एग्जाम भी देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, thou you can start your career in this via this one.
but getting that certificate you will get the job easily as well as with the good salary hike. Okay, then different segment covered in the CPT modules. जो मैंने आपको 6 segment बताए थे, anesthesia, radiology, lab, medicine, evaluation and management, and the another one, the total 6 segments जो थे, उसका total complete knowledge provide करते हैं हम. Then the guidelines, क्योंकि मैंने बताया there is a must, there are something guidelines to use this code. That guidelines also will work. मेजर जो हमारा एक्सक्लूसिव सेट है वो ये है, सीपीसी प्रोफेशनल कोडर एग्जाम का ट्रेनिंग. So this is the complete training by the live scenarios जो previous examination में आया है उसके क्वेश्चन, और इसके साथ में हम 8 to 10 मॉक एग्जाम भी प्रोवाइड करते हैं. कि मॉक एग्जाम करने के बाद जो एवरेज है, पासिंग एवरेज जो है, वो आपका परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, वो ऑलमोस्ट 90% हो जाती है. दाउ हमको तो 70% ही चाहिए रहता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट 90% तक क्या प्रिपेयर हो जाते हैं टू गेटिंग द क्लियर द एग्जाम. देन प्रैक्टिस टेस्ट एंड सॉल्यूशन, वो इसी के अंदर आता है जो मॉक टेस्ट की मैंने बात करी. हम ये सेक्शन अलग से लेते हैं जो हमारा एक्सक्लूसिव फीचर है, क्वेरी एंड डाउट सॉल्विंग सेक्शन. ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको पेपर दे दिया और बोला ठीक है आप हमको स्कोर बता देना कितना हुआ है, बाकी आप देख लेना. सो आफ्टर दैट अगर आपको कोई डाउट्स रहता है, यू कैन चेक दैट, यू कैन मार्क दैट नंबर्स कि आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, एंड फॉर द बैच पर्टिकुलरली वी पुट दैट सॉल्विंग सेशन, query and doubt solving session. Okay, and the last one we also provide that point 100% in the underline. I clear that Element HealthSuite do not give any fake commitment regarding to the job. हम कोई भी फेक कमिटमेंट ये नहीं करते कि आप हमारे ज्वाइन करो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी, ये वाला वर्ड हम कभी यूज नहीं करते कि वो हमने यूज करके आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, वंस ट्रेनिंग डन फिर हम ऐसा बोलेंगे कि ये हमको नहीं पता हमने करा दिया. सो ऑनेस्टली वी विल नॉट से वी आर 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी, बट वी ऑल्सो प्रोवाइड द जॉब असिस्टेंट. जहां जहां पे जॉब अवेलेबल रहेगी अकॉर्डिंग टू योर प्लेस, डेफिनेटली यू कैन चेक अवर वेबसाइट. आप हमारा एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी आई शो यू, दैट इज आवर वेबसाइट एलिमेंट हेल्थ सूट. यहाँ पे हमारा सेक्शन है, आई शो यू, दिस इज गो लाइव एंड फाइंड अ जॉब सेक्शन. ओके, तो जो भी जॉब ओपनिंग्स रहेगी यू विल गेट फ्रॉम हियर. राइट नाउ वी डू नॉट एक्टिवेट दैट, बट ये चेक योर अवेबिलिटी फॉर द करंट ओपनिंग इन द मेडिकल कोडिंग फील्ड. ओके, जो आप अवेलेबल जॉब्स है यहाँ पे आपको इस फील्ड से अवेलेबल हो जाएगी. एज वेल एज ऑन दैट पार्ट, गिव मी वन सेक, यहाँ पे आपको हम जो भी इंटरव्यूज प्रिपरेशन रहती है, जैसे आपने ईडीएनएम के लिए गया होगा नॉर्मल, तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं आईसीडी 10 गाइडलाइंस के, और अगर आपको जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, वी कैन हेल्प ऑन दैट पार्ट. थर्ड थिंग, अगर हमारे रेफरेंस अवेलेबल है उस कंपनी में, जैसे यूनाइटेड हेल्थ केयर में मेरे रेफरेंसेस हैं, और फ्यू कंपनीज जहाँ मेरे रेफरेंसेस हैं, चाहे आप पुणे कोटीवीटी की बात कर लो, तो अगर हमारे रेफरेंसेस अवेलेबल है तो हम आपका रिज्यूम उनके रेफरेंस के थ्रू एंटर करा सकते हैं. दैट इज, बट दैट इज नॉट श्योरिटी, अगर हमारा रेफरेंस है तो ही हम ये कर सकते हैं. so that is the thing, and yeah, we are working on that part ki dheere dheere we are making the connection with the consultancies. So once the relationship is maintained with the different consultancies, that it's very easy for you to get the job according and help of them. Okay, so that is the things which we all provide in our particular training program. So yes, this webinar is covered everything from here. So any question from your side right now, you can mute yourself and you can ask to me one by one if you want. And if I'm not able to give you answer, please, this is my mail ID is given on in this mail ID, or this is my WhatsApp or call number is given. You can call me anytime. You can send the message via WhatsApp or send me mail via this one, and definitely I'll revert back to you whatever is your question and answer. Okay, so that is the end of this webinar. From here, if you want to write down that things, I mean my number, so you can write down here, or email ID. Obviously, I think everyone has the WhatsApp, so we already sent the message to them. So any question from your side, so you can unmute yourself and you can ask me. Anyone? Let me unmute you all. Okay, let me check. I have one question from, I have three questions. Vignesh Kumar asked me what type of certificate is applicable around the world as a medical. Oh, yes, Vignesh, for your answer, I'll show you one thing. That is good question. See, the total scenario is going on. Medical coding is totally there. Two agency, you can say, are two board in the USA.
One is known as AHIMA, AHIMA, American Health Insurance Medical Association. Okay, that is something on that. I'm not sure that is I'm full is right. And one is AAPC. This is the American Association of Professional Coders. So major AHIMA, you can say 90 or 80% people is going for the AAPC examination. That is the good board on that USA. And the certification, there are lots of certification. If you are going for the certification section, so there are lots of certification. See here. Okay, popular certification. Yes, that is CPC, COC, that is for outpatients, certified billing specialist for the medical billing, CPMA for auditor. So you can check this website. This is open website, aapc.com. You can go there. There are lots of certificates. But even though you see this is the first one, CPC. So in this field, this is known as the gold certificate. Why the gold certificate? Because CPC, CPC contain in this course, you can contain everything. Means surgery, medication, diagnostic, all part covered in this certification CPC. So that's why this is the gold certificate. So many people almost in India, also in the US, if you will check any job in the USA, कोई भी job आप check करते USA में, तो 90% आपको बोलेंगे CPC certified चाहिए हमको. Not asking for the other one. Definitely they are also useful. जैसे hospital के लिए CIS is important, but outpatient clinic के लिए आप जाओगे तो बोलेंगे कि CPC का certificate चाहिए हमको. So that is the main certificate. So I think this asking by the Edward, right? No, sorry, Vignesh. So Vignesh, this is your answer. There are lots of certification, but CPC is a gold certificate, so we are giving the training for that one. Okay. Then Edward is work with insurance companies or multiple hospitals. See, in there opportunity for both, Edward. You can get for both. Okay, multiple hospitals for CIC. You can go work with the CIC, also by the CPC, but generally they asking for the CIC. So इन इंडिया में या चाहे यूएस में हॉस्पिटल्स भी आउट पेशेंट कोडिंग करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जरूरी नहीं है कि पेशेंट एडमिट ही होता है. दे आर लॉट्स ऑफ वॉक इन पेशेंट आल्सो और आउट पेशेंट भी जो आते हैं डॉक्टर को दिखाते चले जाते हैं. तो आप हॉस्पिटल के लिए भी काम कर सकते हो, एक सिंगल क्लिनिक के लिए भी काम कर सकते हो, छोटे छोटे क्लिनिक के लिए भी कर सकते हो. नर्सिंग होम्स बोलते हैं जिनको इंडिया में. ओके, वहां पे एसएनएफ बोलते हैं, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी. तो उनके लिए भी आप काम कर सकते हो. Then in India, do hospital or insurance companies need medical? See, in India, right now, in the starting, I told you this is a US healthcare job. तो in India में अभी ये properly सिर्फ अपोलो ने ही apply किया है. So if there vacancy by the Apollo, you can do that in Apollo. But okay, but मेरे को honestly बोलो तो Apollo का भी particular coding segment है कैसा ये पता नहीं है. What exactly they are doing. ओके, सो बट अगर इंडिया में इन फ्यूचर डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया था कि अभी सिग्ना ने एंट्री कर ली है. सिग्ना इज यूएस हेल्थ केयर, नॉट इन इंडिया. अगर आप सिग्ना के बारे में आप चेक करोगे तो सिग्ना है वो यूएस हेल्थ केयर के लिए है. ये माय सिग्ना. ओके, दिस इज द यूएस हेल्थ केयर कंपनी, और अभी इसने इंडिया में एंट्री ली है. आई थिंक सिग्ना की साइट यहाँ ओपन होगी या नहीं होगी यूएस बोर्ड से. सो बट आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ उसके बारे में. दैट इज सिग्ना इज एन अमेरिकन वर्ल्ड वाइड हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, कनेक्टिकट का ऑफिस है. पूरा आपको देखोगे एक्सचेंज में सब दिखा रहा है, यूएसडी में दिखा रहा है. सो दैट इज द सिग्ना, यूएस की कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द अमेरिका. अब इसने इंडिया में एंट्री लिया मणिपाल के साथ. मणिपाल इन इंडियन. ओके, सिक्किम मणिपाल, एग्जैक्टली सिक्किम में है मणिपाल. आई नो दैट नाउ. उनका खुद का कॉलेज भी काफी बड़ा कॉलेज है फॉर एवरी कोर्सेज. सो मणिपाल ने इंश्योरेंस स्टार्ट किया सिग्ना के साथ टाई अप करके. सो धीरे धीरे जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर्ड हो रही हैं तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा. कब होगा आई डू नॉट गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता. तो वंस इट विल हैपन डेफिनेटली इन फ्यू ईयर्स हो जाएगा. अब जैसे धीरे धीरे हम यू आर गोइंग टू डिजिटल एवरीथिंग, राइट, लाइक द पेटीएम, फोन पे, अब हम ट्रांजेक्शन भी डिजिटली करने लगे हैं. जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है डेफिनेटली वन डे इट विल एप्लीकेबल इन इंडिया टू, एंड वंस इट विल एप्लीकेबल इन इंडिया you will get the job on that part too. So I think I didn't get any other questions from right now. Any other question if from your side anyone, so please contact me on that information. Okay, so from here is there any on-site opportunity? Chandrasekhar, on-site opportunity, it depend on your company in which you are working. Okay, so generally ऑन-साइट अपॉर्चुनिटी वैसे इतनी ज्यादा तो नहीं रहती है ऑनेस्टली बोलूं तो. बट या इफ यू लर्न अबाउट द मेडिकल कोडिंग एंड यू विल अप्लाई फॉर द कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द डे. बट नॉट फॉर द यूएसए. यूएसए के लिए आई एम नॉट श्योर कि मिलती है कि नहीं मिलती है प्रॉपरली इन स्टार्टअप. बट यू वंस यू विल लर्न द मेडिकल कोडिंग, फिर उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर द कनाडा. यूएई यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई, यूएई इज ओपन.
and Canada Open, Singapore Open, Australia Open. Now Australia have their AM, not CM, Australian Medical, but वो 3 month में you can understand that अगर certificate आपके पास दूसरा रहता है आप वहाँ सीख जाते हैं. So they are on-site opportunity. On-site means abroad opportunity. On-site particular USA के लिए it is little not impossible but bit difficult. So anyone questions from anyone's side? So okay guys, if anyone want it, they can ask me. Unmute yourself and ask me. Okay, you're welcome. Okay, so I'll close this webinar here, and if you want to join anything, you will have that all the information too. You can directly contact our both numbers. One is given in this and one is I'll let you know on that part. Okay, I'll send to everyone one feedback form who joined this webinar, and one form for the if you will want to join, you can give me your assurance definitely. So we will provide you the information from our side. Okay, so once again, thank you very much for everyone who joined this one. Okay, and really thank you to listen me for that patience. So yes, so have a great day and everyone have a great future. Okay, yeah, so bye everyone.